Yanis Dikshit. Now we are starting exercise 3.6. First question. Solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. Here first part is 1 upon 2x plus 1 upon 3y equals to 2, and second equation is given 1 upon 3x plus 1 upon 2y equals to 13 upon 6. Now here 1 upon 2x we write here 1 upon 2 into 1 upon x plus 1 upon 3y को लिखा 1 upon 3 into 1 upon y equal to 2. Same here 1 upon 3x को 1 upon 3 into 1 upon x plus 1 upon 2y को 1 upon 2 into 1 upon y equals to 13 upon 6. Now here we assume 1 upon x equal to a and 1 upon y equals to b. So the equations converted to 1 upon 2a plus 1 upon 3b equals to 2. Second one is 1 upon 3a plus 1 upon 2b equals to 13 upon 6, क्योंकि 1 upon x की जगह a लिखा और 1 upon y की जगह b. So now we take LCM. Here 2 and 3 LCM is 6. So 2 3 is 6, 3a plus 3 2 is 6, 2 into b, that is 2b equals to 2. 6 goes to multiply, so the equation will be 3a plus 2b equal to 12. Similarly, we found here second equation 2a plus 3b equals to 13. Now on multiplying equation 1 and 2 by 3 and 2 and subtract, we are equating b. So coefficient of b in first is 2 and in second equation is 3. So we are multiplying equation 1 by 3 and equation 2 by 2. So the equations will be 3 3 is 9, 9a plus 3 2 is 6b plus 3 12 is 36. Multiply by 2, so 2 2 is 4a plus 2 3 is 6b plus 2 into 13, that is 26. Now we subtract it, so change the signs. Now minus minus minus, these are cancelled. So 9a minus 4a, that is 5a equals to 36, minus 26 equal to 10. 5 goes to divide, so we will get a equals to 2. Now from equation 1, फर्स्ट में वैल्यू पुट की, सो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12. सो 3a इन द प्लेस ऑफ a पुट 2, सो 3 2 is 6 goes to RHS, then it will be subtracted. 12 minus 6, that is equal to 6. Now 2 goes to divide, so b equals to 6 upon 2, that is 3. Now this value we can put in any equation. Sorry, here a and b are found. Now we have to find x. So a equals to 1 upon x, we assume here 1 upon x equal to a. So a equals to 1 upon x, and this value of a we found here 2. सो वी कैन राइट इट 2 अपॉन 1. और रेसिप्रोकल रिवर्स कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स का रिवर्स क्या हुआ x, 2 अपॉन 1 का रिवर्स क्या हुआ 1 अपॉन 2. या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ b इक्वल्स टू 1 अपॉन y एंड दैट इज 3 हमें मिला b की वैल्यू, यहाँ पे आई b की वैल्यू 3 और b इक्वल्स टू 1 अपॉन y हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है. नाउ रेसिप्रो 3 को 3 अपॉन 1 लिखा और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 अपॉन y का रेसिप्रोकल y और 3 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3. दीज आर द आंसर्स. नाउ सेकेंड पार्ट, 2 upon root x plus 3 upon root y equals to 2. Second equation 4 upon root x minus 9 upon root y equals to minus 1. Let 1 upon root x equals to a and 1 upon root y equals to b. Now equations can be converted to 2 upon root x, so 1 upon root x की जगह a रख देंगे, so it will be 2a. 3 upon root y, so 3b, root y की जगह b. So 2a plus 3b equal to 2. Same here 4a minus 9b equals to minus 1. So here coefficient of b is 3 and here it is 9. So we can multiply equation 1 by 3. So multiply it. 3 से multiply, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 2 is 6. Second equation as it is 4a minus 9b equal to minus 1. Now these signs are opposite, so directly we can cancel out it. So on adding 9b cancelled. 6 and 4 is 10a. 6 minus 1 is 5. 10 goes to divide, so 5 upon 10, that is 1 upon 2. Now this value we can put in any equation, so we are putting in equation 1. So 2a plus 3b equals to 2. 2 into a, in the place of a we can put here 1 upon 2. These two are cancelled, so it is 1. 1 left. Now this one goes to in RHS, so it will be negative. So 3b equals to 2 minus 1, that is 1. Now this 3 goes to in RHS, then it will be in division. So b equals to 1 upon 3. Now a equals to 1 upon root x we assume, and the value we get, that is 1 upon 2. रेसिप्रोकल करने पे रूट एक्स इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और 2 का स्क्वायर 4. सेम हेयर बी 1 अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, रेसिप्रोकल रूट वाई इक्वल्स टू 3 एंड स्क्वायरिंग वाई इक्वल्स टू 9. दिस इज द सेकंड पार्ट डन. नाउ कम टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3 अपॉन एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू 23. यहाँ पे केवल 1 अपॉन एक्स लिखा है, y रेसिप्रोकल में नहीं है, y डायरेक्ट है, तो y को हमें एज्यूम नहीं करना है, ओनली 1 अपॉन एक्स को एज्यूम करना है किसमें, a में. सो इक्वेशन विल बी 4a प्लस 3y इक्वल्स टू 14. सेकेंड विल बी 3a माइनस 4y इक्वल्स टू 23. नाउ y का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई. ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाई 4 एंड 3. 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 है, 4 3 जा 12, 4 14 जा 56. 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 23 को 3 से मल्टीप्लाई 69. ऐड कर देंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, तो डायरेक्टली दे आर कैंसल्ड, सो दे आर कैंसल्ड. 16 9 25 है,
56 69 ऐड कर लेंगे, 9 6 15 1 5 6 6 12 it is 125. This 25 goes to divide, so 25 5 ja 125, so a equals to 5. Now this value we can put in any equation, so we are putting in first equation, that is 4a, so 4 into 5, in the place of a put 5, plus 3y equals to 14, this one. Now 3y equals to 14 minus 4 5 ja 20, 14 minus 20 is minus 6, 3 goes to divide, so y equals to minus 2. Now x की वैल्यू फाइंड करनी है, so a equals to 1 upon x, we assume 1 upon x equals to a. Now the value of a we got 5, 5 को 5 upon 1 रेसिप्रोकल कर लेंगे तो x equal to 1 upon 5. Okay, now fourth part, come to fourth part. Here it is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equals to 2, and second equation is 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equal to 1. So here we assume 1 upon x minus 1 equals to a and 1 upon y minus 2 equals to b. So equations can convert 5a 1 upon x minus 1 इसके प्लेस पे a कर देंगे तो 5a, इसके प्लेस पे b, so it is b equals to 2. Same here, 6a minus 3b equals to 1. Now we have to solve these equations. So here coefficient of b we are equating, so here it is 1 and it is here 3, so we are multiplying equation 1 by 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन 1 दो बार लिख गया है, so इक्वेशन 1 by 3, so 3 से मल्टीप्लाई 3 5 जा 15a plus 3b equal to 3 2 जा 6. Second equation as it is, these are opposite signs, so directly they are cancelled on adding. Now 15 and 6 21a equal to 6 and 1 7, so a equals to 21 goes to divide, so 7 upon 21, that means we get 1 upon 3. Now this value we can put in any equation. Here we are putting in second equation because here it is 6, so 3 is cancelled here, so 6 into a, that is 1 upon 3 minus 3b equals to 1, so 2 is left here, 2 goes to in right side, so it will be subtracted, so 1 minus 2 we get minus 1, minus 3 goes to here, so minus 1 upon minus 3, these minus and minus are cancelled, so b equals to 1 upon 3. Now here we assumed the value of a, that is a की वैल्यू में क्या मानी थी 1 upon x minus 1, so a equals to 1 upon x minus 1 equals to a की वैल्यू मिली क्या आपको 1 upon 3, so रेसिप्रोकल कर लें तो x minus 1 equal to 3, तो x equal to क्या हो जाएगा 1 goes to here RHS, so 1 plus 3 that means 4, x equal to 4. Same here b is y minus 2 और वैल्यू b की सेम आई है 1 upon 3. नाउ रेसिप्रोकल करिए, so y minus 2 equals to 3. नाउ y 2 goes to RHS, so 3 plus 2 that is 5, y equals to 5. These are the answers. Now come to fifth part, 7x minus 2y upon xy equal to 5. Second equation is 8x plus 7y upon xy equal to 15. So this part you have to do in homework. Same part I am doing here sixth, that is 6x plus 3y equals to 6xy. Second equation is given 2x plus 4y equals to 5xy. वन स्टेप एक्स्ट्रा है सिक्स पार्ट में, फिफ्थ पार्ट एक स्टेप के बाद सेम हो जाएगा क्वेश्चन. कैसे देखिए, ये एक्स वाई अगर हम डिवाइड में ले आएँ, सो 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू क्या बचेगा 6. सेम यहाँ पे 2x प्लस 4y अपॉन में क्या लाएंगे एक्स वाई, सो हेयर व्हाट इज़ लेफ्ट 5. अब जरा देखो दोनों इक्वेशन सेम है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, सेम हेयर 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है. तो मैं सिक्स पार्ट कर रहा हूँ, फिफ्थ आपको खुद करना है. ओके, सो नाउ सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई, क्योंकि दोनों के अपॉन में आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, सेम आ जाएगा और न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे. ओके, इक्वल टू 6, सो एक्स से एक्स कैंसिल, हेयर वाई से वाई कैंसिल, सो व्हाट वी हैव 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6. नाउ सेकेंड इक्वेशन सेम, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y upon xy equal to 5. Now again x cancel, y से y cancel, so we have 2 upon y plus 4 upon x equal to 5. Now we can assume, so let 1 upon y फर्स्ट को हमने a मान लिया एंड 1 upon x सेकेंड है तो इसको b मान लिया. इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी 6a प्लस 3b इक्वल टू 6. क्लियर. नाउ कैन वी टेक 3 कॉमन, so here we are taking 3 common, so it is 2a plus b equal to 6.
That means 2a plus b equal to 3 goes to divide, so 3 to just 6, so it is 2. Now this equation we assume first. Now same here, second equation will be 2y 1 upon y, that is 8, so 2a plus 4b equals to 5. Here nothing is common, 2 we can common, but here it is in divide, so not taking common. Now here a coefficient is 2 and here it is also 2, so directly subtract. So on subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकेंड में से माइनस कर रहे हैं तो सेकेंड को पहले लिखेंगे हम, 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5. फर्स्ट इक्वेशन इज 2a प्लस b इक्वल्स टू 2. क्लियर? नाउ हियर इट इज, on subtracting sign are changed, so it is minus, it is also minus, this is cancelled, 4b minus b is 3b and 5 minus 2 is 3. Now 3 goes to divide, so we can write b equals to 1. b की वैल्यू 1 आ गई. Now put this value in any equation, so we are putting in first equation, फर्स्ट में वैल्यू रख रहे हैं. So from equation 1 b की वैल्यू 1 है, so 2a plus b की जगह 1 equals to 2. So 2a equals to 1 goes to here minus, so 2 minus 1, that is 1. Now this 2 goes to divide, so a equals to 1 upon 2. a की वैल्यू 1 upon 2 and b की वैल्यू 1. बट हमें क्या फाइंड करना है, x और y. तो a हमने किसे माना था, a इक्वल्स टू 1 अपॉन y. तो a की वैल्यू क्या आई आपकी 1 अपॉन 2, इक्वल में रख दीजिए 1 अपॉन 2. अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2. क्लियर? नाउ b हमने किसे माना था, 1 अपॉन x को, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी b की, 1. तो 1 अपॉन 1 लिख दें, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो x इक्वल टू 1. x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू 2. दिस इज द 6th पार्ट. नाउ कम टू 7th पार्ट. Here the 7th part is, that is 1 upon 3x plus y plus 2 upon x minus y equals to 4. Second equation is given 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equals to minus 2. Now here it is x plus y, it is also x plus y, not 3. Okay, this is the next part. So 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y equals to 4, and second equation is 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y equal to minus 2. Clear? Now we can assume let 1 upon x plus y equals to a and 1 upon x minus y equal to b. तो 1 upon x plus y इसकी जगह a आ जाएगा, मीन्स इट विल बी 10a plus 2b equals to 4. Clear? And here we can take 2 common, so 2 common लिया, so it will be 5a plus b equals to 4. 2 goes to divide, so we have 5a plus b equals to 4 upon 2, that is 2. This is equation 1 we assume. Now same here, second is 15a minus 5b equals to minus 2. Now again we can take 5 common, 5 कॉमन ले लें, चलिए 5 कॉमन ले लीजिए. सो इट विल बी 3a, बट यार 5 गोज टू डिवाइड, चलिए 3a माइनस b इक्वल टू माइनस 2. सो 3a माइनस b इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. नाउ प्लस b एंड माइनस b बोथ आर कैंसल्ड, सो डायरेक्टली एड. सो ऑन एडिंग equation 1 and 2. So first is 5a plus b equal to 2. Second is 3a minus b equals to minus 2 upon 5. On adding they are cancelled. So 5a plus 3a is 8a equals to 2 plus minus plus, और यहाँ आएगा minus 2 upon 5. Now take LCM. Here upon 1 put. So LCM is 5. 5 to the 10 minus 2. 10 minus 2 is 8. 8 upon 5. Here it is 8a. Now this 8 goes to 8 cancelled. So we have a equals to 1 upon 5. a की value आ गई 1 upon 5. Now this value we can put in any equation. So here this value we can put in first. So from equation 1. So 5a, a की value 1 upon 5 plus b equal to 2. This 5 cancelled.
So here it is 1 left. Now 1 goes to here, so we have b equals to 2 minus 1. So 2 minus 1 equals to 1. b की वैल्यू क्या आ गई 1. Now put here, so 1 upon x plus y equals to a, और a की वैल्यू कितनी आई है 1 upon 5. So on reciprocal we get x plus y equals to 5. x plus y की वैल्यू कितनी आ रही है 5. This is equation 3 we assume. Now same here b, so b is 1 upon x minus y equal to b, और b की वैल्यू कितनी आई है 1. So on cross multiplying we will get x minus y equal to 1. Now this is equation 4. क्रॉस क्योंकि अपॉन 1 लिख लेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 upon 1 सेम ही रहेगा. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. सो वी आर एडिंग, सो ऑन एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4, सो थर्ड एंड फोर्थ ऐड कर दीजिए. सो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1. On adding these are cancelled, so we have 2x equal to 6. Now x equal to 2 3 are 6, x equal to 3. Now this value we can put in any equation, so we are putting in third. So from equation 3 x plus y equal to कितना था 5, x की वैल्यू कितनी है 3, so 3 plus y equal to 5, that means y equal to 5 minus 3, that is 2. Sorry, 5 minus 3 is 2, so it will be 2. So y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3. x is 3, y is 2. This question is completed. Now the last part of this question, that is 8th part. First question is going on still. So 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y equals to 3 upon 4. Second equation is given 1 upon 2 bracket 3x plus y and here bracket closed, and minus 1 upon 2 again 3x minus y, and it is equals to minus 1 upon 8. Now these brackets are same, 3x plus y is also, this one also, 3x minus y also. So we are assuming here, let 1 upon 3x plus y equals to a and 1 upon 3x minus y equal to b. Now equations will be, इसकी जगह a पुट कर देंगे, सो इट विल बी a प्लस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो इट विल बी 4a प्लस 4b इक्वल टू 3. दिस इज इक्वेशन 1. सेम है सेकेंड, सो इट विल बी 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2b इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8. 8 गोज टू है, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने. 8 जब इधर आएगा तो 8 इंटू 1 अपॉन 2, ये 8 केवल इधर ला रहे हैं तो 8 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 1 अपॉन 2, 8 2 4 जाए 8, 4a माइनस 2 से फिर 8 कट जाएगा तो 4b इक्वल्स टू माइनस 1. दिस इज इक्वेशन 2. 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लीजिए, ठीक है. एलसीएम नहीं लिया है, ले भी सकते हैं. नाउ हियर 4b एंड दिस वन आल्सो 4b, बोथ आर सेम, सो वी कैन ऐड इट. सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए. 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 एंड सेकेंड वन इज़ 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1. प्लस करेंगे तो सेम कैंसिल हो जाएगा, 4a 4a 8a इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज़ 2. नाउ a इक्वल्स टू 2 अपॉन 8, सो 2 4 जाए 8, दैट विल बी 1 अपॉन 4. a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4. नाउ दिस वैल्यू वी कैन पुट इन एनी इक्वेशन, सो वी कैन फाइंड b. सो हियर दिस वैल्यू वी आर पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं. सो 4a की जगह 1 अपॉन 4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3. दीज 4 आर कैंसल्ड, सो वी हैव 1. दिस वन गोज टू योर RHS सब्ट्रैक्टेड. सो 4b इक्वल्स टू 3 माइनस 1, दैट इज़ 2. नाउ b इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, दैट मीन्स 1 अपॉन 2. क्लियर, b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 और a की वैल्यू 1 अपॉन 4. नाउ दीज वैल्यूज आर पुटिंग हेयर. सो पुट a इक्वल्स टू क्या था 1 अपॉन 3x प्लस वाई, और a की वैल्यू हमें क्या मिली 1 अपॉन 4. तो रेसिप्रोकल कर लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम थिंग. सो वी विल गेट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. दिस इज इक्वेशन थर्ड. नाउ b, that is 1 upon 3x minus y, and this value we get 1 upon 2 on solving. So on reciprocal
रेसिप्रोकल करेंगे सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 4th। अगेन देखिए y और y सेम है तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट करने पे भी आ जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, बट ऐड कर रहे हैं तो ईजी है। सो ऑन एडिंग, क्योंकि एडिंग में साइन चेंज नहीं होगा, इक्वेशन 3 एंड 4 सेम क्वेश्चन है इसका भी, जो पिछला पार्ट था 7th पार्ट सेम है, थोड़ा सा ये 3 आ गया बस और बाकी सेम है। सो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 and here 3x minus y equal to 2. On adding these are cancelled, it is 6x equal to 6. So x equal to 6 upon 6, that is 1. Now this value we can put in any equation, so putting in third. So from equation 3, 3x that is 3 into 1 plus y equals to 4. So y equals to 4 minus 3, so y equal to 1. दिस इज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स, 3 पार्ट्स आर हियर इन दिस, सो वी कैन कंक्लूड इन दिस ओनली। सो हियर सेकंड क्वेश्चन, हियर फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सेम थिंग, एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। सो हियर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट question is Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. So we have to find here speed of rowing in still water. So we are assuming this one. Let speed of rowing, बोट कहते हैं, स्पीड ऑफ बोट कह दो, रोइंग मीन्स वही चलाना है उसे। सो रोइंग इन स्टिल वाटर be x kilometer per hour, we are assuming here x kilometer per hour, and speed of stream means current या flow of water, speed of stream या current or current, in the question it is given as current, b we are assuming it y, and here it is given that downstream and upstream। देखिए डाउनस्ट्रीम क्या है, जो करंट या फ्लो की स्पीड है, वाटर फ्लो की स्पीड है, मीन्स अगर पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, दिस वन, सो इट इज़ द स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम मीन्स जो रोइंग स्पीड है वो भी किधर आ रही है, नीचे आ रही है, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में, ये कौन सा है, डाउन स्ट्रीम बिकॉज स्ट्रीम तो हमेशा नीचे के लिए आएगा। जब हम डाउन स्ट्रीम में आएंगे मीन्स हम, यानी कि बोट, अगर इसे बोट कह दें, ठीक है, और ये हो गई स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्ट्रीम कह दो इसे, तो स्ट्रीम तो हमेशा नीचे होगा ऑलवेज, एंड इट इज़ ऑल्सो डाउन स्टेयर्स डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स बोथ स्पीड्स कैन बी एडिड, दोनों डायरेक्शन सेम है, सो बोथ स्पीड्स आर एडिड। सो इन डाउन स्ट्रीम बोथ द स्पीड्स आर एडिड, सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम that will be x plus y kilometer per hour. Now speed in upstream इसे और समझिए, देखिए अगेन स्ट्रीम की स्पीड सेम रहेगी, सेम में क्या माना, ये तो स्ट्रीम है, अगर हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमें ऊपर जाना है, ये क्या हो गया, अपस्ट्रीम हो गया ना। अब स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रीम की या जो हम जा रहे हैं उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, मीन्स ये x हो गया बोट और ये y हो गया, सेम एयर x एंड इट इज़ y। सो स्ट्रीम की स्पीड कम होगी, अदरवाइज स्ट्रीम की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हम स्ट्रीम के फ्लो में चले जाएंगे, मीन्स हमें जिधर जाना है उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, तो हमारी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रीम से, ठीक है। तो x ज़्यादा होगा मीन्स इट विल बी x माइनस वाई, बस ये ध्यान रखना कि स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी फ्रॉम बोट स्पीड, सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। Now the question is Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। 2 hours में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 20 किलोमीटर, स्पीड कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई, और टाइम कितना दिया हुआ था, 2 आवर्स। 2 आवर्स होगा, ये 2 किधर आ जाएगा, डिवाइड में, दैट मीन्स वी विल गेट हियर x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, दैट इज 10, सो इट विल बी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर जा रही है, सेम टाइम में, 2 आवर्स में ही, तो डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम,
So that is equal to again speed into time. Now distance is given 4 kilometer and speed is x minus y and time is 2 hours. Same time is given. So here also 2 goes to in divide, so it is 2. So x minus y equals to 2. Reverse करके लिख लिया हमने. This is equation 2. Now we have to solve these two equations by any method. So we are solving by elimination. Here y plus and it is minus, so both are added. So on adding equation 1 and 2, so दोनों को ऐड करेंगे. x plus y equals to 10 and x minus y equal to 2. दोनों को प्लस किया तो y by कैंसिल. x and x 2x equal to 10 into 12. 2 goes to in divide, so x will be 6 km per hour. Now we have to find y. So put this value in any equation. So we are putting in first. So from equation 1, that is x plus y. So 6 plus y equals to 10. x plus y equal to 10. x की जगह 6 रख देंगे. So y will be 4. 10 minus 6 is 4. So 4 km per hour. That is the first part. Now come to second part. Second part is, question is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women और 5 men मिलके एक साथ वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं? 4 डेज में. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 3 डेज में फिनिश कर रहे हैं. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man also. 1 man alone. तो हमें वुमेन और मैन का सेपरेट वर्क फाइंड करना है, कितने दिनों में वो कंप्लीट करेंगे. सो वी आर एज्यूमिंग हियर. सो लेट वर्क डन, नो टाइम टेकन, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है ना, टाइम टेकन. सो वर्क नहीं, लेट टाइम टेकन बाय, फर्स्ट क्या था? वुमेन. टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क, to finish the work be x days. r से डेज है, x डेज में दिया हुआ है. सेम हेयर, टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क बी y डेज. क्लियर, x और y डेज मान लिया. अब अगर कोई वर्क x डेज में फिनिश हो रहा है तो 1 डे में कितना वर्क होगा? हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 आवर्स में कोई वर्क हो रहा है, मान लो 2 आवर्स में अगर मैं 4 पेजेस लिख रहा हूँ, 4 पेजेस मैंने लिखे 2 आवर्स में, तो 1 आवर में कितने पेजेस लिखूँगा मैं? 1 आवर्स में क्या होगा? 1 आवर में 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में? कि यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग मोर टू लेस में क्या होता है? डिवाइड होता है. तो 4/2 पेजेस ये तो होगा. अब जरा देखो, जो 2 आवर्स है वो हमने यहाँ क्या माना है? टाइम क्या माना है? x. तो 2 की जगह क्या हो गया? x हो गया. तो ये 2 जो 4 है और 4 पेजेस, यानी कि हम कोई भी वर्क जब कंप्लीट मानते हैं उसे 1 मान सकते हैं. यहाँ पे w भी मान सकते हैं, कोई भी अदर वेरिएबल, बट नेक्स्ट वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, वो कैंसिल आउट ही होगा. तो हम उस किसी भी कंप्लीट वर्क को क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं. तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x. सो वर्क डन, रिपीट कर रहा हूँ एक्चुअली. here work done by 1, पहले क्या है? वुमेन है. 1 वुमेन इन 1 डे. एक दिन का वर्क ही तो हमने निकाला था, 1 आवर का वर्क निकाला था. 4/2, 4 की जगह 1 और 2 की जगह x, तो 1/x. सेम है, 1 वुमेन इन 1 डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/x. क्योंकि वर्क कंप्लीट वर्क को हमने 1 मान लिया, अदरवाइज हम इसे नेक्स्ट कोई वेरिएबल मान सकते थे. ठीक है, 3 वेरिएबल्स मान सकते थे, थर्ड वेरिएबल, लेकिन यहाँ हमने वर्क जो भी कंप्लीट वर्क मानते हैं उसे हम 1 मान लेते हैं. तो 1/x. अब वर्क डन बाय वुमेन कितनी है? फर्स्ट कंडीशन में 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन इन कितने दिन वर्क कर रहे हैं? वो 4 डेज़ वर्क कर रहे हैं, इन 4 डेज़. अब जरा देखिए, 1 वुमेन अगर वर्क कर रही है 1/x, तो 2 वुमेन मिलकर वर्क करेंगी, डबल हो जाएगा. यूनिटी मेथड, लेस टू मोर, ज़्यादा हो जाएगा. तो 1/x में मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से. अब यहीं पे सेकंड कंडीशन भी देख लो, 1 डे में कोई वर्क हो रहा है 1/x, तो 4 डेज़ में ज़्यादा होगा, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 4 ऑल्सो. सो 2 4 जा 8, दैट इज 8/x. क्लियर. नाउ सेकंड कंडीशन, नाउ फॉर मैन. सो वर्क डन बाय 1 मैन
इन 1 डे में कितना वर्क होगा 1/y, क्योंकि y डेज में वो कंप्लीट कर रहा था मैन। नाउ सेम वर्क डन बाय कितने मैन है 2 वुमेन एंड 5 मैन, सो 5 मैन इन 4 डेज सेम है इन 4 डेज, फर्स्ट कंडीशन में डेज 4 सेम है, सो 1/y इंटू 5 इंटू 4, सो 5 4 जा 20, दैट विल बी 20/y। अब क्वेश्चन था 2 मैन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, जब एक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो कंप्लीट वर्क हमने क्या एज्यूम किया था 1, दैट मीन्स दोनों का सम क्या हो जाएगा 1, तो 80Q टोटल वर्क डन अगर मैं लिख दें टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू 8/x प्लस 20/y दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसको हमने 1 मान लिया, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकंड कंडीशन में हम सिमिलरली लिखेंगे, देखो सेम सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, तो सिमिलरली कितना है 3 वुमेन और डेज कितने हैं 3 डेज, तो 3 वुमेन 3 डेज 3 3 या 9/x वुमेन के लिए। अब मैन के लिए दिया हुआ है 6 मैन और 3 डेज, तो 6 3 या 18/y इक्वल्स टू 1। You can also elaborate by this way, but we are writing it directly. So this is equation 2. Now we have to solve these equations. So we can assume 1/x as a and 1/y as b. So let 1/x equal to a and 1/y equals to b. So the first equation will be 8a plus 20b equals to 1. This is equation 3. Second equation will be 9a plus 18b equals to 1. This is equation 4. Now see here it is 8, it is 9, so how they are equal if we multiply first by 9 and second by 8. So on multiplying equation 1, so no, it is third and fourth by थर्ड इक्वेशन को 9 से एंड 8, और 9 और 8 दोनों साइन क्या है सेम है, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट and subtracting so 9 से मल्टीप्लाई 9 8 जा 72a प्लस 29 जा 180b इक्वल्स टू 9, 8 से मल्टीप्लाई 72a 18 8 जा 144b equals to 8. Now on subtracting sign are changed, so it is minus, all are minus, these are cancelled. 180 minus 144, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36b इक्वल टू 9 में से 8 गया 1, दिस 36 गोज टू इन डिवाइड, सो b इक्वल्स टू 1/36। अब b की वैल्यू आ गई 36, अब हमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, किसी में भी वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ रखने में थोड़ा फ़ायदा होगा, 18/36 कैंसिल हो जाएगा ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो वी आर पुटिंग इन इक्वेशन 2, नो नॉट 2, इट इज़ 4th, सो 9a प्लस 18b की जगह 1/36 इक्वल टू 1, 18 2 जा 36, नाउ 9a इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, दिस 1/2 गोज टू हियर, सो 1/1 अगर हम लिख लें, नाउ टेक एलसीएम 2, सो 2 1 2 माइनस 1 दैट इज़ 1/2, दिस 9 गोज टू इन डिवाइड, सो a विल बी 1/2 और 9, 2 9 जा 18, क्लियर, a की वैल्यू आ गई 1/18 और b की वैल्यू 1/36। अब a आपने क्या एज्यूम किया था 1/x, तो a इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/18, दैट मीन्स x इक्वल टू 18 डेज। सेम ईयर b 1/y और b की वैल्यू 1/36, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 36 डेज। दिस इज क्वेश्चन completed. Now finish the last part also, that is Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. दोनों की स्पीड हमें सेपरेट फाइंड करनी है. So here firstly let स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्या है ट्रेन, सो स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h एंड स्पीड ऑफ बस बी y km/h.
दोनों की स्पीड एज्यूम कर ली एक्स और वाई। अब फर्स्ट कंडीशन देखियो, डायग्रामेटिक अगर हम इसे समझें तो ज़्यादा इजी होगा। सो वी आर ड्राइंग अ लाइन हियर, जो डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस दी हुई है 300 किलोमीटर। अब इसमें फर्स्ट जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर चली जा रही है, ये डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर है, तो बची कितनी 240, 300 में से 60 जाएगा तो ये 240 किलोमीटर हो जाएगी डिस्टेंस। क्लियर है ये। नाउ जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो किससे कवर हो रही है, ट्रेन से, तो उसकी स्पीड क्या है एक्स, और बस की स्पीड कितनी है वाई, तो इसे वाई मान लेंगे। अब टाइम, ये जो डिस्टेंस है इसे हम एज्यूम कर ले रहे हैं ए बी, और इसे हमने सी मान ले रहे हैं, बीच में सी मान लिया, ठीक है। तो ए टू सी पहले गई, फिर सी टू बी रहेंगी। तो अगर हम टाइम फाइंड कर लें, क्योंकि टोटल टाइम गिवन है हमें 4 आवर्स ना, टाइम इज़ गिवन 4 आवर्स। सो टाइम टेकन बाई ट्रेन, क्योंकि फर्स्ट केस में ट्रेन से चल रहे हैं, ट्रेन फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी का जो टाइम है दैट इज़, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज 60 अपॉन स्पीड इज एक्स, 60 अपॉन एक्स हो गया। नाउ सेम टाइम टेकन बाय बस फ्रॉम ए टू सी की जगह क्या हो जाएगा अब सी टू बी, सी टू बी, अगेन फॉर्मूला वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 240 अपॉन स्पीड इज वाई, एंड टोटल टाइम इज गिवन, जो आपको टोटल टाइम गिवन है उसको मैं लिख रहा हूँ टोटल टाइम विच इज़ गिवन 4 आवर्स। तो टोटल टाइम होगा क्या, दोनों को प्लस करना है, तो 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू गिवन 4 आवर्स, इट इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ इन सेकेंड कंडीशन here 100 किलोमीटर कवर्ड बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग 200 किलोमीटर बाई बस। सो सेकेंड केस, इसको केस फर्स्ट कह दो, केस फर्स्ट। नाउ दिस इज केस सेकेंड। इन सेकेंड केस डिस्टेंस अगेन सेम है, ये 300 किलोमीटर है, ए बी वही है। अब यहाँ पे जो 100 किलोमीटर है दैट इज़ कवर्ड बाई व्हाट, ट्रेन, सो इट इज़ 100 किलोमीटर, दिस वन 100 किलोमीटर, इसको हमने डी कह दिया। अब रिमेनिंग डिस्टेंस 200 किलोमीटर, ये वाई बस, तो ये एक्स हो गया यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे वाई स्पीड हो गई। टोटल टाइम में कहा हुआ है 10 मिनट्स लॉन्गर, तो 10 मिनट प्लस कर देंगे, तो ये सेम ही रहेगा अप्रॉक्स लैंग्वेज ना। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन बाई ट्रेन फ्रॉम ए टू डी, ए से डी तक, तो टाइम अगेन क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है 100 और स्पीड x, तो इट विल बी 100 अपॉन x। नाउ टाइम टेकन बाय बस फ्रॉम, अब ए टू डी क्या आ जाएगा डी टू बी, डी टू बी। नाउ डी टू बी फॉर्मूला वही रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी हो गई 200 और स्पीड कितनी है y। अब टोटल टाइम दोनों को प्लस कर देंगे, सो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई। क्वेश्चन में कहा हुआ है 10 मिनट लॉन्गर, तो 4 आवर्स, यहाँ पे तो 4 था, आवर ही था, ठीक है, इसलिए हमने आवर नहीं लिखा यूनिट, क्योंकि ये भी यूनिट आवर में, ये भी आर में, ये भी आर में, और ये भी आर में, 3 यूनिट सेम है इसलिए वहाँ सेम रहा। बट यहाँ यूनिट किस में है, आवर में है, ये भी यूनिट आवर में है, बट 4 आवर्स एंड 10 मिनट। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यूनिट चेंज है, तो इस यूनिट को हमें सेम करना होगा। तो 4 आवर्स प्लस 10, जो 10 मिनट है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, अब टोटल क्या हो गया, ये आर हो गया, 0 0 कैंसिल। नाउ टेक एलसीएम, सो 4 6 या 24, 24 प्लस 1 25, सो इट विल बी 25 अपॉन 6। नेक्स्ट पार्ट पेज पे आ रहे हैं। सो इट इज़ 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल्स टू एलसीएम कितना 6, सो 6 4 जा 24 प्लस 1, यूनिट इज़ आर। हाँ, अब दो तीनों यूनिट सेम हो गए और आर, अब यूनिट हटा दे रहे हैं, सो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल्स टू 25 अपॉन 6, ठीक है। आर 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, सो इट इज़ 600 एक्स प्लस 6 2 जा 1200, वाई क्यों आ जाएगा, ओके नो, अपॉन एक्स है ना अभी,
it is also upon y equals to 25. Now it is equation to be assuming. Now 1 upon x अब एज्यूम कर ले रहे हैं. 1 upon x को हमने एज्यूम कर लिया a एंड 1 upon y को एज्यूम कर लिया b. जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट वाज 60 upon x, so it will be 60a and it is 240b equals to 4. So equation will be 60a plus 240b equals to 4. This is equation 3. Now second equation converted to 600a plus 1200b equals to 25. बेटा देखिए यहाँ पे 60 600 सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दें. सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइन सेम है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग. तो एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4. 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 600 a प्लस 2400 b इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है 40. नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड एज इट इज़ 600 a प्लस 1200 b इक्वल्स टू 25. On subtracting sign are changed, so it is minus, it is also minus, it is also minus. These are cancelled. 2400 minus 1200, so it is 1200 b equals to 40 minus 25, that is 15. 1200 goes to divide, so b equals to 15 upon 1200. Divide कर लो 15, 8 जा 120, so it is 1 upon 80. b की वैल्यू आ गई 1 upon 80. अब हमें a निकालना है. किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं. सो हम किसी में भी रख सकते हैं ना. 80 b की वैल्यू है ना, किस में रख दें, हम इसमें रख रहे हैं थर्ड में. ठीक है, सो थर्ड में रख रहे हैं वैल्यू. सो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो 60a प्लस 240b, b की जगह क्या रखना है 1 अपॉन 80. इक्वल में कितना है 4. 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 या 24, 3 goes to here in RHS, so it is subtracted. So you will get 60a equals to 4 minus 3, that is 1. This 60 goes to divide, so you will get a equals to 1 upon 60. Now a की वैल्यू हमने क्या मानी थी, a equals to 1 upon x, and a की वैल्यू क्या मिली है 1 upon 60. That means x equal to 60 किलोमीटर पर आर, मीन्स ट्रेन की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आर. b हमने किसे माना था 1 upon y को, and it is 1 upon 80. That means y equals to, on reciprocal, y equals to 80 kilometer per hour. This exercise is completed. Okay.